English classes. I am Manisha Shrivastava. Today I am going to explain poetry number 2 of the book Hornbill, which is for students of class 11th. The title of the poem is The Voice of the Rain, written by Walt Whitman. In this video, I will cover about the poem's background and title, stanza-wise explanation and poetic devices used in this poem. So let's start with about the poet. Walt Whitman was born on 31st May 1819 in West Hill on Long Island, New York. He was an American poet, essayist and journalist. His major works include Leaves of Grass, Song of Myself, O Captain, My Captain, etc. He won Golden Award for Picture Book Illustration and died on 26 March 1892. Now moving to poem's background and title. What is the title? The Voice of the Rain. It is interesting now because rain, we can't expect that it can speak. But here the title is Voice of the Rain. Means it is saying something. And about the background and central idea, this poem signifies the eternal role that the rain plays in nurturing, quenching and purifying the various elements of earth. एक दिन पोएट अपने घर में बैठे हैं और अचानक बारिश शुरू हो जाती है और वो विंडो से उसका नज़ारा देख रहे हैं। अक्सर आपने भी इसी तरह बारिश का नज़ारा देखा होगा घर की खिड़कियों से, और वो उस खूबसूरत दृश्य में, बारिश के दृश्य में इतना खो जाते हैं कि उनका मन होता है कि वो बारिश से बात करें, और सरप्राइजिंगली बारिश उनसे बात करती है और उनको अपने ओरिजिन और अपने आने का एम सब कुछ बताती है. ब्यूटिफुली एक्सप्लेन द वाटर साइकिल हियर एंड कंपेयर्ड विथ म्यूजिक ऑल्सो. दिस इज ऑल अबाउट द पोएम बैकग्राउंड. नाउ आई विल टेल यू स्टैंजा वाइज एक्सप्लेनेशन. Stanza 1. And who art thou? Said I to the soft falling shower, which, strange to tell, gave me an answer, as here translated. I am the poem of earth, said the voice of the rain. Here thou means you, soft falling means dropping softly, and shower means raindrops when they fall continuously on earth. Now the explanation is, the poem begins with the poet asking for the identity of the soft falling rain shower. As I told you earlier, the poet बाहर रेन को देख रहे थे और वो बारिश के दृश्य में इतना खो जाते हैं कि उनको ऐसा लगता है, ऐसा मन होता है कि वो बारिश से बात करें. तो उनके मुंह से एक क्वेश्चन निकलता है, एंड हु आर दाउ, और किसकी कला हो तुम, कौन हो तुम. देन उनको उम्मीद नहीं थी, आखिर हम रेन से उम्मीद नहीं कर सकते कि वो आंसर करेंगी, लेकिन पोएट इतना खोए हुए हैं कि बोलते हैं सरप्राइजिंगली आई वॉज सरप्राइज्ड बिकॉज आई गॉट एन आंसर फ्रॉम रेन. रेन ने उनको आंसर किया एज हियर ट्रांसलेटेड, जैसा कि उन्होंने ट्रांसलेट करके बताया है अपने रीडर्स को. आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ. रेन ने क्या आंसर किया? मैं तो धरती की कविता हूं. Said the voice of the rain. Surprisingly इसलिए कहा बिकॉज हम उम्मीद नहीं कर सकते कि रेन, जो कि एक नॉन लिविंग फैक्टर है, वो आंसर करेगा. The rain in its own voice tells the poet that she is the poem of this earth. रेन अपनी वॉइस में पोएट को बताती है कि वह धरती की कविता है. The rain is trying to say that as music or poetry gives pleasure to human beings, the rain gives happiness to Mother Earth. यहाँ पर रेन क्यों कहती है कि वो धरती की कविता है? जैसे पोएट्री या लिरिक्स ह्यूमन बीइंग्स को खुशी देते हैं, प्लेजर देते हैं, उसी तरह रेन ये कहने की कोशिश कर रही है कि वो भी अपनी मदर अर्थ को, धरती माँ को हैप्पीनेस देती है. दैट्स ऑल हियर स्टैंजा 1. नाउ आई विल टेल यू स्टैंजा 2. इटर्नल आई राइज impalpable out of the land and the bottomless sea, upward to heaven, whence vaguely formed, altogether changed, and yet the same. Here, eternal means everlasting,
Impalpable means unable to be felt by touching. Bottomless, very deep. Whence, from where. Vaguely, unclearly. Now the explanation is, the poet says that the rain is an eternal process but it takes different forms at different times. पोएट यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि हालांकि बारिश का होना एक इटर्नल प्रोसेस है और समय समय पर ये अलग अलग फॉर्म्स लेती रहती है. It rises from the land and the deep sea in the form of intangible water vapor and goes up to the sky. जैसा कि आपने छोटी क्लासेस में वाटर साइकिल में पढ़ा होगा कि रेन कैसे होती है, कैसे ओरिजिन होता है इसका. लैंड से उठती है, बॉटमलेस सी से, वाटर वेपर के रूप में और ऊपर क्लाउड्स के रूप में इकट्ठा हो जाती है. इनडिस्टिंक्ट फॉर्म, इट इज सेड दैट वेगली फॉर्म बिकॉज क्लाउड्स का अपना कोई स्पेशल स्ट्रक्चर या फॉर्म नहीं होता, वे अलग अलग साइज के होते हैं. Although it changes in its form or shape, its core matter remains the same. हालांकि ये अपना फॉर्म और शेप चेंज करती रहती है, लेकिन इसका कोर मैटर जो कि वाटर कंटेंट ही है, चाहे वो वेपर हो या क्लाउड हो, तो कोर मैटर रिमेन्स द सेम. Since vapor and clouds contain water, they can get transformed into the other. हालांकि और चूंकि वाटर वेपर और क्लाउड्स दोनों में वाटर कंटेंट सेम होता है, इसलिए इन दोनों को आपस में ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है. The words impalpable and eternal indicate the nature is not fully understood, and some part of it remains always beyond our reach. Impalpable और eternal वर्ड यहाँ पर जो यूज किए गए हैं वो ये बताते हैं कि नेचर को या प्रकृति को पूरी तरह से नहीं समझा जा सकता. It can't be touched, only felt. और इसके कुछ पार्ट को हम बिल्कुल नहीं समझ सकते और कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारी रीच से हमेशा दूर रहती हैं. वाटर साइकिल इज ब्यूटीफुली डिस्क्राइब्ड कि वाटर वेपर पहले बॉटमलेस सी से, लैंड से उठता है और स्काई में जाकर क्लाउड्स के फॉर्म में कलेक्ट होता है. और उसके बाद आई विल टेल यू इन स्टैंजा 3. Stanza 3 is, I descend to lave the drops, atomies, dust layers of the globe, and all that in them without me were seeds only latent, unborn. Descend means move or fall downwards. Lave means wash, draughts, dry spells. Atomies, very tiny particles. Latent, dormant or inactive. Now the explanation is, the raindrops pour down from above to wash away draughts and dust layers enveloping earth. लास्ट स्टैंजा में मैंने बताया कि वाटर वेपर्स क्लाउड्स के रूप में ऊपर स्काई में कलेक्ट हो जाते हैं और जब वो हैवी हो जाते हैं क्लाउड्स और उस जो बोझ है उसको संभाल नहीं पाते तो रेन ड्रॉप्स के रूप में नीचे बरस पड़ते हैं. अब ये रेन ड्रॉप्स जब नीचे आती हैं तो धरती पर पड़े सूखे को दूर करती हैं और डस्ट लेयर जो दिन धूल के कणों ने धरती को घेर रखा है चारों तरफ से, उनको वॉश आउट कर देती हैं, साफ कर देती हैं. इट सेटिस्फाइड द thirst of the dry earth and heals everything that is degrading and is lying lifeless. अर्थ की थर्स्ट को रेन सेटिस्फाई करती है और साथ ही जो कुछ भी खराब हो रहा है या लाइफलेस हो रहा है उसको हील करती है. The showers remove the dust particles and make earth clean and green. ये शावर्स, बारिश की बूंदें, डस्ट पार्टिकल्स को पूरी तरह से धो डालती हैं और अर्थ को क्लीन और ग्रीन बना देती हैं. आपने बारिश के बाद का नज़ारा देखा होगा, जो भी हमारे हरे भरे पेड़ हैं वो और ज़्यादा हरे और ज़्यादा साफ सुथरे नजर आने लगते हैं. The rain also helps in the germination of seeds which were lying dormant due to a dry spell. बारिश होने की वजह से जो भी बीज बोए जाते हैं धरती में, जो बिल्कुल इनएक्टिव से पड़े थे, वो अब बारिश के आने से जर्मिनेट होने लगते हैं और ग्रो करने लगते हैं. तो अगर बारिश ना हो तो ना तो हमारा एटमॉस्फेयर क्लीन होगा, ग्रीन होगा, ना ही हमारे सीड्स को जर्मिनेट करने का, ग्रो करने का कोई चांस मिल पाएगा, वो इसी तरह अनबॉर्न ही रह जाएंगे. नाउ मूविंग टू स्टैंजा 4. 4 is, and forever by day and night I give back life to my own origin and make pure and beautify it. Last two lines are written in bracket. I will tell you its significance also. For song issuing from its birthplace after fulfillment, wandering, read or unread, duly with love returns.
origin, source, beautify, make beautiful, issuing, originating, fulfillment, completing the cycle, wandering, moving from one place to another, wrecked, cared about, unwrecked, uncared for, duly, properly and rightly. Now the explanation is, the rain is involved in a continued process of giving life on earth by providing water to dormant seeds and making the earth more beautiful and full of greenery. रेन लगातार एक कंटिन्यूड प्रोसेस में इन्वॉल्व होती है अर्थ को ब्यूटिफाई करने में और ग्रीन करने में और इनएक्टिव सीड्स को जर्मिनेट करने में. रेन हेल्प्स इन एनहांसिंग द ब्यूटी ऑफ अर्थ एंड in the absence of water everything turns dull or lifeless and dust accumulates everywhere. रेन अर्थ की ब्यूटी को एनहांस करने में इन्वॉल्व है, ग्रीन करने में इन्वॉल्व है, सीड्स को जर्मिनेट करने में इन्वॉल्व है और डस्ट पार्टिकल्स को जो कि अर्थ के चारों ओर छाए हुए हैं उनको दूर करने में, वॉश करने में इन्वॉल्व है. अगर रेन नहीं होगी तो फिर सारा एटमॉस्फेयर बिल्कुल अनक्लीन, डस्टी लगेगा, चारों तरफ धूल धूल नजर आएगी. मैंने आपको कहा था कि लास्ट 2 लाइंस वो ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई हैं. इसका रीजन ये है कि ये रेन की वॉइस नहीं है. अब तक जो पोएम सुनाई आपको वो रेन की वॉइस थी. रेन अपनी इंपॉर्टेंस के बारे में पोएट से बता रही थी जब उन्होंने पूछा था कि तुम किसकी कला हो. उसके जवाब में रेन ने कहा था कि मैं अर्थ की पोएम हूँ और उसके बाद अपनी पूरी वाटर साइकिल बताई थी कि वो क्या क्या करती है अर्थ पे आने के बाद. आफ्टर हियरिंग टू द वर्ड्स ऑफ रेन, जो रिफ्लेक्शन पोएट ने दिया है, जो उन्होंने ऑब्जर्व किया है उसके बारे में इन 2 लाइनों में बताया गया है. रेन की बात सुनने के बाद पोएट को ऐसा लगता है कि रेन की लाइफ और पोएम या सॉन्ग की लाइफ बिल्कुल सिमिलर होती है. जिस तरह से रेन धरती पर आती है और अपना काम करके वापस अपनी जगह चली जाती है स्काई में और लगातार ये प्रोसेस चलता रहता है, इसी तरह पोएम भी एक पोएट की क्रिएटिविटी होती है और पोएट के हृदय से निकलकर रीडर्स तक या ऑडियंस तक पहुंचती है. उनको बहुत सारी लाइफलेस लोगों को लाइफ देती है, उनकी लाइफ में थ्रिल लाती है और चाहे उस पोएम को कोई पसंद करे या ना पसंद करे, कोई अप्रिशिएट करता है, कोई क्रिटिसाइज करता है और वो फिर वापस पोएट के पास वापस चली आती है. मीन्स पोएट की नज़र में जिस तरह से रेन ब्यूटिफाई करती है अर्थ को, उसी तरह से पोएम ह्यूमन लाइफ्स को ब्यूटिफाई करती है, उनके लाइफ में थ्रिल भरती है और उनको लाइवली बनाती है. दैट्स ऑल अबाउट द पोएम. नाउ आई विल टेल यू द वैल्यूज हाईलाइटेड इन दिस पोएम and poetic devices used. The values highlighted in this poem are patience, perseverance and benevolence. The poem brings out the eternal property of nature. Rain is a continuous cycle going on forever. Rain does not expect any appreciation or approval for its work. Although it helps in creating new life and restoring life to old, helpless, lifeless things on earth. It heralds Earth's prosperity and happiness without any selfish motive. Man can learn a lot from nature, which is an epitome of patience and perseverance. Children, rain से हम man यानी हम human beings बहुत कुछ सीख सकते हैं. एक रेन ड्रॉप को पता होता है जब वो क्लाउड से नीचे धरती पर आती है कि उसको क्या क्या करना है. उसको पता है कि उसको सीड्स को जर्मिनेट करना है, एटमॉस्फेयर को क्लीन करना है, लाइफलेस थिंग्स को रीस्टोर करना है, उनको लाइफ देनी है और अर्थ को और ज़्यादा ब्यूटीफाई और ग्रीन करना है. लेकिन हम ह्यूमन बीइंग्स क्या अपनी ड्यूटी को जानते हैं? क्या हमको पता है कि हमको लाइफ गॉड ने किस लिए दी है? तो एक रेन ड्रॉप भी अपने ओरिजिन का, अपने अर्थ को, अपना कर्ज एक तरह से कहिए वो चुका के जाती है. जिस अर्थ से उसका जन्म हुआ है उसको वो साफ करती है, ग्रीन करती है, सीड्स को जर्मिनेट करके और भी बहुत सारे काम करती है, रीस्टोर करती है लाइफ को. और हम ह्यूमन बीइंग्स हम अपने ओरिजिन को, अपनी ड्यूटी को भूल जाते हैं. तो वी कैन लर्न अ लॉट फ्रॉम नेचर, फ्रॉम रेन. दिस इज द मैसेज.
Now the poetic devices used in this poem are. Earlier I told you that poetic devices are used in a poem to beautify it, to give it more meaning. In this poem, yes, personification is highlighted because जब किसी नॉन लिविंग फैक्टर को आप ह्यूमन क्वालिटी देते हैं, जैसे रेन, वी कांट एक्सपेक्ट रेन दैट इट विल स्पीक, बट हियर इट इज द टाइटल इज वॉइस ऑफ द रेन. यहाँ पे रेन बात कर रही है, अपनी इंपॉर्टेंस बता रही है. सो रेन इज personified here. Now the other poetic device is simile. In the last two lines जब पोएट ने रेन का कंपैरिजन पोएम से किया है तो यहाँ पर सिमिली का यूज हुआ है. हाइपरबोल, बॉटमलेस सी. जब ये वर्ड यूज किया गया है कि सी बॉटमलेस होता है, मतलब उसकी डेप्थ का कुछ अता ही पता नहीं होता, तो ये हाइपरबोल है. जब किसी चीज को बढ़ा चढ़ा के बताया जाए तो हाइपरबोल होता है. इमेजरी, फर्स्ट लाइन लिखिए सॉफ्ट फॉलिंग शार. जब आप ये वर्ड पढ़ते हो आपके दिमाग में एक ड्रिजलिंग की, शार की पिक्चर क्रिएट हो जाती, इमेज क्रिएट हो जाती. सो इमेजरी हैज बीन यूज्ड. These poetic devices are used in this poem. Children, I hope you have loved it, understood the poem very well. So, thank you very much.